بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. حاضرین گرامی، خطبہ مسنہ کے بعد آپ احباب کے روبرو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا تھوڑا حصہ پڑھا گیا ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت، اہمیت، فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ہم لوگ رمضان المبارک حاصل کرنے سے بہت قریب ہے. شعبان کی آج 24 تاریخ ہے. صرف 5-6 دن کے بعد ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی برکتوں کو، سعادتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. رمضان اصل میں شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے.
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت میں سب سے پہلی بات جو ذکر فرمائی ہے وہ ہے نزول قرآن. انزل فیہ القرآن. یہ قرآن دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. آپ دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہے. ایک دن سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، مگر قرآن کو فنا نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ ورڈز آف اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اور اس کو فنا نہیں ہونا ہے. دنیا میں اگر کوئی چیز غیر مخلوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کا حصہ ہے، تو وہ ہے قرآن. اسی لیے قیامت کے قریب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا جب دنیا کو فنا کرنا ہو. تو قرآن کے ساتھ جس کا رشتہ جڑ جائے، یاد رکھیے اس کا مقام سب سے اونچا ہو جائے. وہ نبی جس پر یہ قرآن نازل ہوا، اس نبی کا مقام سارے نبیوں میں اونچا ہو گیا. وہ امت جس پر یہ قرآن، جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اس امت کا مقام سارے امتوں میں اونچا ہو گیا. وہ شہر جہاں جہاں پر قرآن کا نزول ہوا ہے، تمام شہروں میں ان شہروں کا مقام اونچا ہو گیا. اور وہ رات جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس رات کا مقام سارے راتوں میں زیادہ ہو گیا. یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ قرآن کی نسبت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہاں تک کہ امامت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو تم میں قرآن جانتا ہے، اقرأکم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سب سے اچھا پڑھنے والا، زیادہ علم رکھنے والا امامت کے حقدار ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں تراویح کے لیے ایک چھوٹے بچے کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہے. یہ نہیں کہ بڑھایا جاتا کسی ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، بیرسٹر کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے، کسی بزنس مین کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے. یہ مقام ہے سبحان اللہ قرآن کا. یہاں تک کہ شہیدوں میں بھی کس کا مقام اونچا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، احد کے میدان میں جب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ایک قبر میں 3 4 لاشوں کی رکھنے کی باری آئی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کی لاش سب سے پہلے رکھیں. تو نبی نے ان شہیدوں میں کہا کہ اقرأہم لکتاب اللہ، ان میں سب سے زیادہ اکثرہم لکتاب اللہ، کہا کہ دیکھو ان میں سے سب سے پہلے ان کو رکھو. قدموہ اکثرہم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے، ایسے آدمی کو، ایسے شہید کو تم آگے رکھو. اللہ اکبر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن پڑھنا آتا ہے ہم کو، قرآن سمجھ میں ہم کو آتا ہے. سلف صالحین کہتے ہیں جب ہمیں اللہ سے بات کرنے کو جی کرتا ہے تو ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب اللہ کی باتوں کو سننے کو جی کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی باتیں ہی تو ہیں. سبحان اللہ. آج قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. طرفہ بیدی، ایک کنارہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہاری طرف ہے. لہٰذا تم میں سے جس نے اللہ کی اس کتاب کو پکڑ لیا، اللہ کی اس رسی کو تھام لیا ہے، جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے، دوسرا کنارہ تمہاری طرف ہے، اور اللہ کے ساتھ جس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے، آپ بتائیے اس کا مقام کتنا اونچا ہو جائے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. لہٰذا رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں. رمضان کا یہ پہلا فلسفہ ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں. قرآن اچھے سے پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، قرآن سنا کریں. اسی لیے یاد رکھیے کہ قرآن کی تلاوت تراویح میں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اب کھڑے ہو کر بہت دیر تک سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن سنایا کرتے تھے جبرائیل کو، اور آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہونا تھا،
آپ نے 2 دور کیا تھا، قرآن 2 مرتبہ جبرائیل کو سنایا ہے. سبحان اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. قرآن سے رشتہ جوڑ لیجیے، آپ کا مقام اونچا ہو جائے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ کہا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے. ہدایت پانا چاہتے ہو قرآن کے پاس آ جاؤ. قرآن میں ہدایت ہے، قرآن کے اندر ہر طرح کی گمراہیوں کا علاج ہے. قرآن پڑھو، یہ ہدایت ہے. اور وبینات من الھدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھیں. روزہ فرض ہے، صیام فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یہ رمضان کے صیام تم پر فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھا. مقصد کیا ہے؟ فلسفہ روزہ کیا ہے؟ فلسفہ رمضان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اب آئیے رمضان کا دوسرا فلسفہ سمجھتے ہیں، وہ ہے تقویٰ. تقویٰ، تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ تقویٰ نکلا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر، لیکن اصل معنی ہے جہنم اور اپنے درمیان ایک رکاوٹ کھڑا کرنا، جس کو کہتے ہیں کہ احتیاط برتنا، پریکاشن جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بہت بڑے نقصان سے آپ کو پہلے سے ہی چوکنا رہنا، بچنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے ابی بتائیے تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کیا بہترین تعبیر کی، دیکھی. فرمایا اے عمر، کیا تمہارا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس راستے میں دلدل ہو، ہر طرف یہ دلدل ہو؟ کہا کہ ہاں. کیسے چلے ہو؟ کہا کہ بہت سنبھال کے قدم رکھا ہو، دامن سمیٹ کے چلا ہوں تاکہ کہیں کیچڑ میں پھنس نہ جاؤں، دلدل میں پھنس نہ جاؤں، دھس نہ جاؤں، اور میرے دامن کہیں داغدار نہ ہو جائے. ابی بن کعب نے کہا کہ عمر یاد رکھو، یہی تقویٰ ہے. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں رہو مگر اپنے دامن کو داغدار کرنے سے بچاؤ. یاد رکھو، تم اگر ایک تاجر ہو، تجارت اور کاروبار میں دھوکے سے بچ جاؤ، تم سود اور انٹرسٹ سے بچ جاؤ، تم بیع سے بچ جایا کرو، کسی کو ٹھگنے سے بچ جایا کرو، دھوکہ دینے سے بچ جایا کرو، رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچا کرو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا کرو. اگر تم ایک اسٹوڈنٹ ہو تو باہر پڑھتے ہوئے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرو. نوجوان ہیں، اپنے دامن کو داغدار کرنے سے بچایا کرو. عورتیں ہیں، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کیا کریں. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. دنیا میں رہو مگر دامن کو داغدار کرنے سے بچاؤ، پھونک پھونک کے قدم رکھو، احتیاط کرو تاکہ کہیں ہم جہنم رسید نہ ہو جائیں. اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ. لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے روزہ رکھ کر. تو روزے کا اصل اور بنیادی مقصد ہے حصول تقویٰ. اور حصول تقویٰ کے لیے کیا کیا کرنا ہے، آئیے ان باتوں کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو سیام ہے نا، سیام کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ سیام اور رمضان کے فلسفے کو سمجھ جائیں گے. سیام کی اصل معنی ہے اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا. دوسرے الفاظ میں صبر. سیام اور صبر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، صبر کرنا. رمضان کی ہر عبادت، رمضان کی ہر ریاضت ہمیں قدم قدم پہ صبر سکھاتی ہے، قدم قدم پہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا سکھاتی ہے. رمضان کے روزے ہمیں صبر سکھاتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھ، کھانا حلال ہے، بیوی حلال ہے، مگر اللہ نے کہا سورج غروب ہونے تک حرام ہے. تو نے سحری کر لی ہے، اب حرام ہے. صبر کرو، احتیاط کرو، کنٹرول کرو. صبر ہے، صبر ہے.
नमाजों की पाबंदी में सब्र किया करो, नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में सब्र किया करो। आपको चाहे कि क़याम करते हुए, तरावी का एहतमाम करते हुए वो हमें सब्र सिखाता है। इसी तरह से शब कदर की तलाश में हमें सब्र सिखाता है। कुरान की तिलावत, ज़िक्र और अस्कार हमें सबक सिखाते हैं। सदका तो खैरात हमारे दिल को थाम कर बखीली और कंजूसी को दूर करते हुए हमें सब्र सिखाता है। हर चीज हमें सब्र सिखाती है। यही नाम है सियाम। इसीलिए नबी ने फरमाया, से मुस्लिम की रिवायत है, मैंने आपके सामने हदीस का टुकड़ा खुतबा मसनूना के बाद पढ़ा है। नबी ने फरमाया अस्सियामु जुन्ना, अस्सियामु जुन्ना, ये रोजा ढाल है। ढाल का क्या मतलब है? दुश्मन से आप लड़ते हैं, मैदान कारज़ार में है, जंग के मैदान में है, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल है। आप क्या करते? ये ढाल यानी शील्ड है, इसके जरिए से आप दुश्मन के वार को रोकते हैं ना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है ना। इन्न शैतान लकुम अदु, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन से लड़ने के लिए रोजा ढाल है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि देखो, जब तुम में से कोई आदमी रोजे की हालत में हो, कोई लड़ने आए, तो शैतान से बचाव के लिए रोजे को ढाल के तौर पर पेश करो। कहो कि देखो भाई मैं रोजेदार हूं, गाली दे, कहो कि मैं रोजेदार हूं। इसीलिए नबी ने फरमाया, जिस आदमी ने रोजा रखा, रोजा रखकर झूठ को नहीं छोड़ा, धोखा देना नहीं छोड़ा, गलत काम करना नहीं छोड़ा, उसके खाना पीना छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई बेकार है, कोई फायदा नहीं है, उसके रात जागने का कोई फायदा नहीं है। कम मिन साइमिन, कितने रोजेदार ऐसे हैं, लैसा मिन सियामिही इल्लल जू, कहा कि रोजे रखकर भूख और प्यास के अलावा और रात जागकर सिर्फ जागने के अलावा कुछ नहीं मिला। एक लफ्ज नहीं, एक तरह का भी सवाब उनको नहीं मिला है। क्यों? इसलिए कि हमने रोजे का हक अदा नहीं किया, उसके फलसफे को हमने समझा नहीं। तो सियाम के फलसफा ये हुआ, अपने आप को सब्र, कंट्रोल करो। और याद रखिए, जो इंसान सब्र कर लिया वही कामयाब है। से मुस्लिम की हदीस से नबी ने फरमाया, इन्नमा ज़फ़्रु बिस्सब्र, कामयाबी सब्र में है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद सब्र और सलात के जरिए से आएगी। अल्लाह ने मजीद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब बदला देगा। लिहाजा रमजान में अपने आप को सब्र करना सिखाओ। दिल मचलेगा, हमारे मिजाज और तबीयत में बात आएगी, और सब्र में कंट्रोल कीजिएगा। हम रोजा रखकर 12 घंटा 13 घंटा पान पराग, बीड़ी, जर्दा, गुटखा सब छोड़ देते हैं ना। उसके बाद आपने 13 घंटा सब्र किया, बाकी और 11 घंटा सब्र नहीं कर सकते हैं? ये मन को समझाइए, ये मन के भूल है। और फिर जब आप एक दिन सब्र कर लिए, क्या आप 7 दिन और 20 दिन 30 दिन और साल भर सब्र नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखिए, इस रोजे हमें, अगर हम रोजे रखकर इन गुनाहों को छोड़ा नहीं है, रोजे का फायदा क्या हुआ? अल्लाह कह रहा रोजा रखकर तुम मुत्तकी बन जाओगे। हम रोजा रखने के बाद मुत्तकी नहीं बन सके, तो याद रखिए जहन्नम से अपने आप को बचा नहीं सके, और अपने आप को जहन्नम से नजात नहीं दिला सके, मगफिरत हासिल नहीं कर सके, तो क्या फायदा है? इसीलिए नबी की इस हदीस को जरा गौर से सुनिएगा। और रमजान का तीसरा फलसफा है हुसूल मगफिरत। हुसूल मगफिरत, रमजान कदम कदम पे हमें मगफिरत, माफी, तलाफी, अल्लाह से माफी मांगने को सिखाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा, जो आदमी रमजान के रोजा रखता है ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ, उसके पिछले सारे गुनाह माफ। रमजान के रोजे का मकसद है गुनाहों की माफी। क़यामुल लैल, तरावी और रात जागने का मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो रमजान में क़याम किया, तरावी का एहतमाम किया, ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ, उसके सारे गुनाह माफ। तरावी का मकसद है हुसूल मग़फ़िरत। शब कद्र के ताल्लुक से नबी ने फरमाया, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ है। और शब कद्र के ताल्लुक से अम्मा आयशा ने पूछा, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल अगर ये शब कद्र मिल जाए तो क्या पढ़ें? तो नबी ने
माफी के बारे में सिखाया। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह ताला तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, लिहाजा अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर। माफी माफी माफी, ये रमजान के रोजे का मकसद है। और जो इंसान रमजान पाकर अपने आप को गुनाहों से माफी नहीं करवा पाया, बड़ा बदनसीब है। हदीस सुन लीजिए और इस हदीस को सामने रखकर आज से आप तहिया कर लीजिए कि रमजान में कैसे गुजारना है। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। साहबा ने खुतबे से फरागत के बाद पूछा, अल्लाह के रसूल आपने खिलाफ मामूल आप ऐसे क्यों किए आज कि मेंबर की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आपने 3 बार आमीन 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 कहा है? नबी ने फरमाया, देखो जी, जिब्राइल अमीन आए थे, जुमा का दिन है, खुतबे का वक्त है। जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है और उस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले नबियों के, इंसानों के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बताइए कि ये दुआ रद जाएगी? जरूर बस जरूर ये दुआ कबूल होकर रहेगी। क्या कहा? मेंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरिश्ता आए और कहा कि देखो, जिसको बूढ़े वालिदैन मिल गए और उनकी खिदमत करके जन्नती नहीं हो सका, बदनसीब हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और फरिश्ते ने कहा, जिसको रमजान का महीना मिला और अपने गुनाहों की माफी नहीं करवा सका तो बदनसीब है, वो नाकारा है, वो नाकाम हो जाए। मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरिश्ते ने कहा कि जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े, उसकी नाक जमीन आलूद हो जाए, खाक आलूद हो जाए, नाकाम नामुराद हो जाए। मैंने कहा आमीन। कायनात में सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाले अगर कोई है नबी पर तो है अहले हदीस। हर हदीस के बाद हम पढ़ते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कायनात में अगर सबसे ज्यादा कोई गुस्ताखी करता है वो लोग हैं जो म्यूजिक और ढोल ताशे के साथ अपने अपने चीजों में दसियों बार नबी का नाम लेते हैं मगर एक बार ना पढ़ने वाला सुनने वाला दरूद पढ़ता है। हाँ, बार बार कहते नहीं कहते मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, कोई बोलता है? एक बार भी बोलता? गुस्ताख कौन है? हम तो हर हदीस के बाद कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाब होना चाहते हो, हम आपको पैगाम देते हैं कि आप नबी के नाम के साथ दरूद पढ़ना सीखो, वरना फरिश्ते की बद्दुआ में तुम आ जाओगे, नाकाम नामुराद हो जाओगे। रमजान जो पाया और रमजान पाके अपने गुनाहों की माफी तलाफी नहीं करवा सका, बदनसीब है कि नहीं है? अल्लाह अकबर, अल्लाह से डरे और रमजान में अपने आप को माफ कराने की कोशिश करें। नाज़रीन, रमजान आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं रमजान से पहले जैसे थे, रमजान आए तो ऐसे रहे, रमजान गुजर गया जो के तो कोई तब्दीली नहीं है जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे हैं रमजान आने के बाद नेक बन गए, पहले नेक नहीं थे, रमजान में नेक बने, रमजान खत्म, नेकिया भी खत्म। हाँ, ईद के चांद के साथ फिर ईद के चांद को हजरत नजर आएंगे। हाँ, ये भी गलत है। रमजान पाने के बाद जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। और रमजान पाना कितनी बड़ी खुशनसीबी देखिए। इब्ने माजा की रिवायत है, मुसनद अहमद बिन हंबल में भी ये रिवायत है सही सनद के साथ। तलहा बिन उबैदुल्लाह एक सहाबी हैं, उन्होंने ख्वाब में देखा कि 2 सहाबा एक साथ इस्लाम कबूल किए, एक साथ हिजरत करके आए। उनमें से एक सहाबी जंग में शामिल होके जाम शहादत नोश फरमा लिए और एक साथी 1 साल बाद इंतकाल किए। ख्वाब में उन्होंने देखा कि दोनों साथी एक साथ खड़े हैं, जन्नत का दरवाजा खुला और जन्नत के निगहबान फरिश्ते आए और आकर कहा कि वो इंसान जो 1 साल बाद फितरी मौत वफात पाए हैं, उनसे कहा कि तुम आ जाओ जन्नत में पहले। उनको पहले लेकर गए, फिर बाद में आकर वो जो शहीद हुए उनको बाद में जन्नत में लेकर गए। तलहा बिन उबैदुल्लाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, शहीद को बाद में मौका मिला और इनको पहले मौका मिल गया। आकर अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये क्या माजरा है, मैंने इस तरह से ख्वाब देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ तलहा क्या तुमने देखा नहीं, अमा तरा क्या तुमने देखा नहीं
کہ وہ इंसान जो 1 साल बाद वफात पाए हैं उनको एक रमजान मिला है और एक रमजान में उन्होंने ऐसी इबादतें की है, अल्लाह ताला इतना खुश हुआ है कि उसका मुकाम इतना ऊंचा हो गया कि शहीद से आगे जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी में कितने रमजान आए और गए मेरे भाइयों, रमजान पाना कितनी बड़ी खुशनसीबी देखिए। इसलिए रमजान की पहली रात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या करना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है, रमजान की खुशखबरी दिया करो। हाँ, सही मुस्लिम की रिवायत है और इसी तरह से दीगर सही रिवायतों में है, हसन दर्जे की रिवायत है इब्ने माजा में और दीगर रिवायतों में है कि रमजान आता तो अनस बिन मालिक और अबू हुरैरा कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, लोगों अताकुम रमजान शहर मुबारक, रमजान आ गया, मुबारक महीना है, बाबरकत महीना है। ये बाबरकत महीने में याद रखो जब पहली रात है तो जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की तरफ से ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है या बागी अल खैर अकबिल या बागी अल शर्र अक्सिर, ऐ खैर के मुतलाशियों आगे बढ़ो, ऐ शर के चाहने वाले पीछे हटो। वाकई माने में इसीलिए बच्चों में ये रमजान की खुशी महसूस की जाती है ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जो रोजा नहीं रखता है छुपते छुपाते फिरता, अक्सर पीछे हटो, ये तुम्हारा महीना नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, रमजान पाना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और रमजान पाकर जो रमजान के हक अदा नहीं किया, एक तो फरिश्ते की बद्दुआ में है और दूसरे हदीस सुन लीजिए, अबू उमाम अल बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते, सही रिवायत है कि मैंने ख्वाब में देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा, नबी ने देखा कि कुछ लोगों को एक दुश्वार गुजार पहाड़ के ऊपर ले जाया गया, मुश्किल से चढ़ा गया, कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया, उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है, कनपट्टी तक चीख रहे, चिल्ला रहे, खून टपक रहे हैं, फिर सही हो जा रहे, फिर चीरा जा रहा है। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन से बदनसीब हैं? जिब्राइल ने कहा कि ये वो लोग हैं जो रमजान में रोजा रखकर भूख बर्दाश्त ना करके रोजा तोड़ दिया करते थे। रोजा रखकर वक्त से पहले जो रोजा तोड़ देते थे, ये इनका हशर है। और जो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रोजा रखते नहीं है, उनका क्या हशर होगा जरा बताओ। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। याद रखिए नबी ने फरमाया जो बंदा मेरे लिए एक रोजा रखता है, अल्लाह उसको 70 साल जहन्नम से दूर रखता है, चाहे वो रोजा नफिल रोजा हो या फर्ज रोजा हो, कोई भी रोजा हो। रोजे के ये फायदे और ये उसके मकासद और फलसफा मेरे भाई। लिहाजा आइए अब खुलासा कलाम के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये रमजान का फलसफा ये है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि देखो सबसे पहले तकवा हासिल हो, शुक्रगुजारी, सबर, शुक्र। और ये रमजान खुलासे के तौर पर सेल्फ असेसमेंट यानी खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी का महीना है, अपने आप की तरबियत का महीना है। अपने आप की तरबियत करो और अपने आप को सही बनाया करो, अपना जायजा लिया करो, अल्लाह के सामने रो गिरगिरा दुआ करो, अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे। रमजान की गुजरने से पहले आप माफी तलाफी कर लें। रमजान के ताल्लुक से चंद ज़ईफ और बेबुनियाद बातें लोगों में बहुत मशहूर है कि रमजान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत है और तीसरा अशरा इत्क़ मिनन नार जहन्नम से आज़ादी का है। ये गलत हदीस है। रमजान सारे के सारा महीना रहमत है, सारा महीना मगफिरत का है, सारे के सारे जहन्नम से आज़ादी का है। इसलिए नबी ने फरमाया सही हदीस में कि हर रात में अल्लाह तबारक तआला जहन्नम से लोगों को माफी तलाफी देता है, हर वक्त रहमत करने के लिए तैयार रहता है, हर वक्त मगफिरत होती है। आपने क्यों 10 दिन के लिए खास कर दिया? ये रिवायत सही नहीं है। इसी तरह से लोगों में मशहूर है कि रमजान में हर नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा है। हाँ, कहते हैं कि नफिल फर्ज की तरह है और एक फर्ज 70 गुना है। गलत है, सही हदीस नहीं है, ये भी सही हदीस नहीं है। अल्लाह के पास हर नेकी का बदला हर वक्त कम से कम 10 गुना है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला 70 नहीं, कितना बड़ा चढ़ा कर देगा अल्लाह तबारक तआला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह नाम में फरमाया, दलील ले लीजिए, मा जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा वमन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिथलहा। जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह के पास 10 गुना बदला तो कम अज कम है। और अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहे बहुत बड़ा चढ़ा कर दे, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अल्लाह कितना देगा अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा इसी तरह से बाज़ लोगों के पास ये भी तसव्वुर है कि रमजान में क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर गांव देहात वगैरह में पाया जाता है कि सहरी के लिए लोगों को जगाते हैं,
क़रात पढ़ते हैं, नज़म पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, गलत बात है, ये नबी का तरीका नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अजान का तसव्वुर मिलता है, अजान के अलावा इन चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं। फिर इसी तरह से इफ्तारी के वक्त में, इफ्तारी का वक्त हो गया है, नज़म पढ़ रहे हैं, क़रात पढ़ रहे हैं, आ जाओ 2 मिनट 4 मिनट है, जल्दी करो, ये करो, ये तरीका सलफ़ सालिहीन से साबित नहीं है। और ये कि इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है, ये रिवायत भी सही सनद से साबित नहीं है। रोजेदार की दुआ हर वक्त कबूल होती है, लेकिन इफ्तारी के वक्त में, हाँ बाज़ आलिम ने ये लिखा, लेकिन वो जो रिवायत वो ज़ईफ है। बाज़ आलिम ने लिखा क्योंकि उस वक्त आजिज़ी इंकिसारी ज्यादा होती है और अल्लाह तबारक तआला ऐसे रोजेदारों पर फख्र करता है कि देखो फरिश्तों, खाना मौजूद है, सब कुछ पीने का सामान है, भूख प्यास से निढाल है, मेरा हुक्म नहीं है मगर खा नहीं रहे हैं, ऐसों को तुमने पैदा करने से मना किया था। अल्लाह फख्र करता है इस वक्त में। लिहाजा रोजेदारों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजेदार के लिए खास एक जन्नत का दरवाजा रैयान है और रोजेदार के लिए खास खुशी का मौका है। और 2 खुशी का मौका क्या है? हीना युफ्तिर, जब इफ्तार करता है हर रोजेदार को खुशी होती है। ये दुनिया भी एक जिस्मानी खुशी का मौका है, एक रूहानी खुशी कब है? कहा कि जब अपने रब से वो मुलाकात करेंगे, वहां पर अल्लाह तबारक तआला से उनको खुशी होगी, जब अल्लाह ताला से वो मुलाकात करेंगे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देने वाला। अल्लाह अकबर। क्या बदला देगा? अल्लाह के लिए बड़ी मिसाल है। देखिए दुनिया में एक जैसे बहुत बड़ा कोई सीएम पीएम किसी जगह का जो है वो कहे कि मैं ये काम मेरे लिए है, मैं खास प्राइज दूंगा, तो सोचिए कितना बड़ा होगा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। क्या बदला अल्लाह देगा अल्लाह बेहतर जानता। क्यों रोजा अल्लाह के लिए? रोजे का एक फलसफा याद रखिए, ईमान, इखलास। रोजे में रियाकारी नहीं हो सकती, दिखावा नहीं हो सकती। याद रखिए हर इबादत आप जबान से ना भी बोले तो दिख जाती है ना। अब नमाज पढ़ रहे हैं, जबान से नहीं बोल रहे, फिर भी आप पता चल जाता है नमाजी है। हज के लिए गए, पता चल जाता है। सदका खैरात कर रहे हैं, जाहिर में पता चलता। मगर रोजा जब तक आप जबान से ना कहे मैं रोजे से हूं, किसी को पता चलेगा? अल्लाह के लिए करता है, इखलास लिल्लाहियत इसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। इसीलिए रोजा अल्लाह के लिए है। और कहा कि इहमानन व इहतिसाबा, नबी के तरीके पर किया करें। याद रखिए तो इंशाअल्लाह इस रोजे का बड़ा फायदा होगा। इसीलिए रोजे में देखिए हर कफारे में रोजे का तस्करा है। रोजा हमें गुनाहों से माफी का सबक दिया करता है। खुलासा कलाम ये हुआ, आज मैंने आपके सामने खुतबे में ये रखना चाहा कि रमजान का फलसफा ये है, रमजान ये नुज़ूल कुरान का महीना है, कुरान से रिश्ता जोड़ लें। तकवा और परहेज़गारी का महीना है। तकवा जहन्नम से बचने का नाम है, एहतियात करके फूंक फूंक के कदम रखने का नाम है। सबर और शुक्र का नाम है। शुक्र क्या है? अल्लाह की दी हुई हर नेमत का सही इस्तेमाल करो। अल्लाह ने जो भी नेमत दिया है और भूख प्यास रह कर ये फलसफा हासिल करो कि मैं तो 12-13 घंटा भूखा रहा एक महीना सिर्फ, और उसके लिए इतनी तकलीफ हुई। कितने गरीब ऐसे हैं, मिस्किन है जो साल भर भूखा रहते हैं, उन गरीबों के लिए कुछ किया करो। इसीलिए रोजे में सदकातुल फितर है। फितरा गरीबों के साथ खैर खाए, हमदर्दी, खैर खाए, खैर सगाली, ये सब कुछ होनी चाहिए। याद रखिए ये सारा फलसफा रमजान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको फलसफा रमजान को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।